یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ عاشق کھانڈے سے خبریں سنیے۔ پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ یوگا کے 10ویں بین الاقوامی دن کے سلسلے میں سری نگر میں قومی سطح کی تقریب کا انعقاد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انسان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی ترویج میں یوگا کی اہمیت کو کیا اجاگر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سری نگر میں یوگا تقریب کا انعقاد کرانے کے لیے وزیر اعظم کا کیا شکریہ ادا۔ کہا تقریب کی بدولت بین الاقوامی سطح پر جموں کشمیر کی ساکھ میں ہوگا اضافہ۔ ایل جی کے ہاتھوں سری نگر میں JNK ٹریڈ شو 2024 کا افتتاح۔ خطے کی گوناگوں ثقافتی ورثے اور زرعی منظرنامے کے عین موافق پالیسیاں مرتب کرنے کا دہرایا عزم، اور جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے حجاج کرام کی سعودی عرب سے واپسی کا سلسلہ کل سے ہوگا شروع۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پوری دنیا میں آج انتہائی جوش و خروش اور ولولے کے ساتھ یوگا کا 10واں بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ اس تعلق سے قومی سطح کی بڑی تقریب شہرۂ آفاق جھیل ڈل کے کنارے پر واقع SKICC سری نگر میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سری نگر میں یوگا تقاریب کی قیادت کی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، مرکزی وزیر پرتاپ راؤ گنپت راؤ جادو اور کئی دیگر اہم شخصیات نے یوگا تقریب میں شرکت کی۔ کئی ممالک میں سفارت خانوں اور بھارتی مشنوں میں بھی یوگا تقاریب کا اہتمام کیا گیا، جس سے یوگا کی وسیع مقبولیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ SKICC میں وزیر اعظم نریندر مودی نے یوگا پروٹوکول سیشن میں حصہ لینے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انسان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی ترویج میں یوگا کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں یوگا کی اہمیت کو بڑے پیمانے پر تسلیم کیا جا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اب یوگا میں شامل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں لوگ یوگا کو اختیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سال 2015 میں ترکمنستان میں انہوں نے ایک یوگا سینٹر کا افتتاح کیا اور اب اس ملک میں یوگا مقبول ترین عمل بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی ملکوں میں یوگا نظام تعلیم کا ایک حصہ بن چکا ہے اور اس پر کافی تحقیق کیا جا رہا ہے اور متعدد تحقیقی مقالے شائع ہو رہے ہیں۔ نریندر مودی نے کہا کہ پچھلے 10 برسوں کے دوران یوگا کو عام کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے، جس کے ثمرآور نتائج سامنے آ رہے ہیں اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سال کے موضوع یوگا فار سیلف اینڈ سوسائٹی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا یوگا کو عالمی انسانیت کے لیے بہتری اور فلاح و بہبود کی خاطر ایک مؤثر ذریعہ مان رہی ہے۔ نریندر مودی نے یوگا کے تئیں دلچسپی کا مظاہرہ کرنے اور یوگا سیشن میں بڑھ چڑھ کر شرکت کرنے کے لیے جموں کشمیر بالخصوص سری نگر کے لوگوں کی تعریف کی اور کہا کہ اس عمل سے UT میں سیاحتی منظرنامے کو مزید دوام حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یوگا اور سیاحت مل کر جموں کشمیر میں روزگار کا بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ نریندر مودی نے کہا کہ بارشوں کے باوجود 50 سے 60 ہزار لوگوں نے یوگا پروگرام میں شرکت کی۔ تقریب پر اپنے خطبے میں آیوش کے وزیر پرتاپ راؤ جادو نے لوگوں کو یوگا کے بین الاقوامی دن کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں یوگا یاترا 2015 میں شروع ہوئی، جب سے لے کر آج تک یوگا نے لوگوں کی زندگیوں میں مثبت بدلاؤ لایا۔ انہوں نے کہا کہ جسمانی اور ذہنی نشوونما کے ساتھ ساتھ یوگا سماج میں یکجہتی اور بہبودی کے اقدار کو بڑھاوا دیتی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ روزمرہ کی اپنی زندگیوں میں یوگا کو شامل کریں تاکہ اس کے انفرادی اور سماجی فوائد سبھی تک پہنچ سکیں۔ دراسنا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے یوگا کے 10ویں بین الاقوامی دن کی بڑی تقریب کے لیے جموں کشمیر بالخصوص سری نگر کا انتخاب کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی نوعیت کی اس تقریب میں سے جموں کشمیر ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر یوگا کو فروغ دینے کے لیے وزیر اعظم کی کاوشوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یوگا سے وسودھیوا کٹمبکم کے جذبے کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال یوگا دن کے تناظر میں ایک دوسرے کو تحفظ دینے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تاریخی پروگرام سے جموں کشمیر عالمی نقشے پر آ گیا ہے۔ ادھر جموں کشمیر میں یوگا کے بین الاقوامی دن کے سلسلے میں آج الصبح لگ بھگ تمام ضلعوں اور دیگر اہم مقامات پر یوگا سیشنز کا انعقاد کیا گیا، جن میں کافی تعداد میں یوگا لورز، اسکولی بچوں، بزرگوں اور خواتین نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ یوگا کے ماہرین نے انہیں پیشہ ورانہ طریقے پر یوگا کروایا۔ مختلف ضلعوں میں موجود ہمارے نمائندوں نے خبر دی ہے کہ عام لوگوں نے یوگا کے تئیں کافی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور ماہرین نے
इंसान की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा में योगा के अहम रोल को उजागर किया। माहिरीन ने कहा कि योगा की बदौलत इंसान कई आलाइशों और बीमारियों से छुटकारा पा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना ने आज श्रीनगर में हाईकोर्ट अहाते में 10वें बैनुल-अक़वामी योगा दिन की तकरीब का इफ्तिताह किया। इस तकरीब पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और अदालत आलिया के दीगर जज साहिबान और अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर जस्टिस संजीव शर्मा ने जिस्मानी और जहनी तौर तंदुरुस्त रहने और बिला तनाव जिंदगी गुजारने में योगा की अहमियत को उजागर किया। इसी तरह हाईकोर्ट कम्प्लेक्स जम्मू में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस राहुल भारती की सदारत में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम झैली इलाकों में इसी तरह के प्रोग्राम मुनक्कद हुए, जिनमें काफी तादाद में शुरका ने योग आसन किए। उधर योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के सिलसिले में आज शास्त्री नगर जम्मू में वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ J&K की तरफ से स्पोर्ट्स मीट का एहतमाम किया गया। इस दौरान माहिरीन ने नौजवानों की मजमूई नशोनुमा में योगा और खेलकूद के साथ साथ मुक़व्वी ग़िज़ा की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर वॉलीबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी VK मगोत्रा ने एसोसिएशन के कामकाज का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि वॉलीबॉल एसोसिएशन नौजवानों में छुपी खेल सलाहियतों को निखारने में एक अहम रोल अदा कर रही है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम SKICC श्रीनगर में एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू कश्मीर प्रोग्राम में शिरकत की, जिस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के 84 अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कई एक को अवाम के नाम वक्फ किया। नीज उन्होंने ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों के लिए 1800 करोड़ रुपए लागत वाले एक अहम प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया। यह प्रोजेक्ट यूटी के 20 जिलों के 90 ब्लॉकों में अमलाया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर में देर बाद तरक्की को यकीनी बनाने और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने के लिए खित्ते के गुनागू सकाफती विरसे और ज़रई मंजरनामे के तनाजुर में पॉलिसियां मुरतब कर रही है। श्रीनगर में आज J&K ट्रेड शो 2024 का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इकदाम के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं और इससे इक्तिसादी मौके भी पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करने से यूटी का तरक्याती मंजरनामा एक नए दौर में दाखिल होता है। इस ट्रेड शो में दस्तकारी, हैंडलूम, ज़राअत और बागवानी से जुड़े अफराद के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू, IGP कश्मीर VK बिरदी, कमिश्नर सेक्रेटरी सनत हिरफत विक्रमजीत सिंह, डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधूरी और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में चुनाव फहरिस्तों में अपडेशन के अहकाम सादिर किए हैं और 1 जुलाई को क्वालिफाइंग तारीख मुकर्रर किया गया है। इसके साथ ही यूटी में चुनाव तैयारियों का सिलसिला शुरू होगा। कमीशन ने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में आने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इन रियासतों में भी चुनाव फहरिस्तों की अपडेशन की जा रही है और वहां भी क्वालिफाइंग तारीख 1 जुलाई होगी। हरियाणा और महाराष्ट्र में मौजूद असेंबलियों की मुद्दत इस साल नवंबर, जबकि झारखंड असेंबली की मुद्दत अगले बरस जनवरी में पूरी हो रही है। तमाम रियासतों और यूटीज में पिछला खसूसी समरी रिवीजन 1 जनवरी 2024 को क्वालिफाइंग तारीख मुकर्रर करके अमल में लाया गया था। नए समरी रिवीजन से तमाम अहल और बिना एनरोल के शहरियों को एनरोल होने और आने वाले इंतखाबात के दौरान अपने हक की रायदही का भरपूर मौका फराहम होगा। इलेक्शन कमीशन ने इस एतमाद को दोहराया है कि चुनाव फहरिस्तें आजादाना, शफाफ और काबिल एतबार इंतखाबात की बुनियाद है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हुज्जाज किराम की सऊदी अरब से वतन वापसी का सिलसिला कल से शुरू हो रहा है और ये अमल 11 जुलाई तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के मुताबिक 9 मई को श्रीनगर से परवाज नंबर SG 5122 के जरिए रवाना हुए हुज्जाज कल शाम 8:30 बजे श्रीनगर पहुंच जाएंगे, जबकि उस रोज दूसरी परवाज से रवाना हुए हुज्जाज 23 जून को सुबह 11:50 पर श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंच जाएंगे। हुज्जाज के रिश्तेदार उन्हें एयरपोर्ट से लाने के लिए गाड़ियों के पास हज कमेटी वेबसाइट www.jkshc.org से डाउनलोड कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 7,000 से जायद हुज्जाज ने इस साल हज कमेटी की वसातत से फरीज़े हज अंजाम दिया।
दरियासना सूबाई इंतजामिया ने हुज्जाज किराम की बिला रुकावट वतन वापसी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हैं और मुतलका महकमों को हिदायत दी गई है कि वह इस बात को यकीनी बनाएं कि हुज्जाज को श्रीनगर एयरपोर्ट पर किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट यूजी 2024 के काउंसलिंग अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक नोटिस भेज दिया। अदालत उज़्मा ने इस सिलसिले में नई अरजदाश्तों को पहले से मौजूद अरजदाश्तों के साथ जम कर दिया है और मामले की अगली तारीख 8 जुलाई मुकर्रर की गई है। यह फैसला नीट यूजी इम्तिहान को दरपेश जारी लीगल चैलेंजों के तनाजुर में सामने आया है। आकाशवाणी न्यूज को मुल्क में सबसे ज्यादा एतमाद वाला न्यूज ब्रांड तस्लीम किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के राइटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म की तरफ से हाल ही में की गई एक सर्वे में इस हकीकत की तस्दीक की गई है कि मुल्क के मीडिया मंजरनामे में आकाशवाणी न्यूज ने एक काबिल फख्र मकाम हासिल किया है। इस ताल्लुक से प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि ये तमाम सूरतों में सच को नशर करने के आकाशवाणी न्यूज के अज़म की तौसीक करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्कद करवाने, रियासती दर्जा बहाल करने और दूरियों को मिटाने की बातों पर अब अमल किया जाना चाहिए। पार्टी के 9 मुंतखब अराकीन पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद और आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि लोगों के मसाइल को हल करने और समाज के हर एक तबके की राहत रसानी के लिए खातिर ख्वाह इकदाम किए जाने चाहिए। दरियासना पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हज के आखिरी दिनों में गर्मी की वजह से काफी तादाद में हुज्जाज किराम के जाँ बहक होने पर दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने सऊदी अरब में फौत हुए जम्मू कश्मीर के हुज्जाज के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आम बजट से पहले की मुशावरत के तहत किसान अंजुमनों और ज़रई इक़्तिसादियात के माहिरीन के साथ बात की। इस मीटिंग में खजाने के वजीर मुमलिकत पंकज चौधरी, फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी स्वामीनाथन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रवि अनंता नागेश्वरन और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ट्रैफिक पुलिस कौमी शाहरा ने इस साल 1 जनवरी से 31 मई तक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की पादाश में 38,350 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की और उनसे 3,85,23,950 रुपए का जुर्माना वसूल किया। इस बात की जानकारी आज डीआईजी ट्रैफिक डॉक्टर मोहम्मद हसीब मुगल ने रामबन में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए दी। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो हर सूरत में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। साइंस और टेक्नोलॉजी महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने आज तमाम महकमों के नोडल अफसरों के साथ श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में सरकारी इमारतों में सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट्स नस्ब करने के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि अब तक 3,825 सरकारी इमारतों पर यह बिजली प्लांट नस्ब किए गए हैं, जबकि पूरे प्रोजेक्ट को दिसंबर 2025 तक मुकम्मल किया जाएगा। और अब आखिर पर मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।